मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल वर्ल्ड एजुकेशन फैमिली में तहे दिल से स्वागत है। हर दिन की भांति मैं फिर आज आप लोगों के लिए एक सुपर धमाका इंग्लिश का टॉपिक लेके आया हूं और आज का इंग्लिश का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। तो इंग्लिश का हमारे जीवन में क्या महत्व है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमारे बीटीबीसी कोर्स के क्लास 12 में एक किताब है स्टोरी ऑफ इंग्लिश और उस स्टोरी ऑफ इंग्लिश के 8 नंबर चैप्टर का नाम है फ्यूचर ऑफ इंग्लिश। उसी फ्यूचर ऑफ इंग्लिश चैप्टर में शिक्षा विभाग या बिहार सरकार उस चैप्टर में मेंशन किए हैं या लिखे हैं द स्टोरी ऑफ इंग्लिश इज द स्टोरी ऑफ मॉडर्न मैन। सब कोई गौर करोगे, द स्टोरी ऑफ इंग्लिश इज द स्टोरी ऑफ मॉडर्न मैन, मतलब इंग्लिश की कहानी आधुनिक इंसान की कहानी। वी कैन नॉट बी ए मॉडर्न मैन विदाउट ए इंग्लिश लैंग्वेज। आज के डेट में हम लोग डॉक्टर, इंजीनियर, कोई भी क्षेत्र में इंग्लिश के बिना तरक्की नहीं कर सकते हैं। इसलिए बिहार सरकार ठीक ही चैप्टर नंबर 8 जो हमारे हैं फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, उसमें सही लिखे हैं कि द स्टोरी ऑफ इंग्लिश इज द स्टोरी ऑफ मॉडर्न मैन। सिर्फ यही सेंटेंस काफी है बताने के लिए कि इंग्लिश का क्या महत्व है। सब कोई गौर करोगे, द स्टोरी ऑफ इंग्लिश इज द स्टोरी ऑफ मॉडर्न मैन। इंग्लिश का कहानी मतलब आधुनिक इंसान की कहानी। इंग्लिश इज द लैंग्वेज दैट बिलोंग्स टू द होल वर्ल्ड। इट इज ए कॉमन लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। English is a common language of the world and English is the language that belongs to the whole world. English is the language of international sports. English is the language of earning money. English is the language of livelihood. English is the language of employment. In any sector we cannot get a job without English language. We cannot show our talent in the world stage without English language. Without English language we cannot be a hero of this world stage. If you want to be a hero of this world stage, I politely request to my all students, all friends, please read English, write English and speak English. If you want to be a hero of this world stage, without English you cannot be a hero of this world stage. If you want to show your talent in the world stage, please to speak English and to read English and to write English. English is the language of international sports. English is the language of international travel and tourism. English is the language of science. All the terms of science carry English to English. English is the language of medical line. In medical line, all the terms carry English to English. English is the language of computer. In computer, all terms carry English to English. So we cannot progress without English in any sector. In our country, India, we are greatly dependent on English for official, social and commercial purpose. English is a powerhouse of literary activity. All types of books of the world are published and printed in English medium. So, English has great importance in our life and the world. English is a common language of the world. English is spoken all over the world. English आज पूरे दुनिया में बोले जाते हैं. Today English is spoken all over the world. आज English पूरे दुनिया में बोले जाते हैं. So we cannot progress in any sector without English language. We cannot get a job in multinational market without English language. But in our country, the position of English is very miserable. Miserable माने खस्ता. लेकिन हमारे देश में इंग्लिश का हालत बहुत ही खस्ता है. Particularly in the Hindi belt or Hindi states. I politely request to my young generation and students, we should take English as a challenging task. We should take English as a challenging task because we cannot progress in any sector without English language. We cannot progress in any sector without English language. English is the language that belongs to the whole world. English is the language of science. English is the language of learning all over the world. All over the world we study the course and in diploma in the medium of English. इसलिए पूरे बिहार में जितने क्लास 11 और 12 के क्या कहता है स्टूडेंट है, आपका जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश है उस पूरा स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जो इंपॉर्टेंस है उसका क्या कहता है मैं समराइज पूरे स्टोरी ऑफ इंग्लिश किताब का समराइज आपको मैं बोर्ड में क्या कहता है लिख के दिया हूं और मैं खुद क्या कहता है इंग्लिश का क्या इंपॉर्टेंस है वो भी मैंने आपको बताया। तो अब मैं लाइन बाय लाइन थोड़ा बोर्ड की तरफ आता हूं कि इंग्लिश का क्या महत्व है। सिर्फ पहला ही सेंटेंस तो बच्चों को जगाने के लिए और इंग्लिश का
महत्व बताने के लिए बहुत है, बहुत है। कहा जाता है ये वर्ड इज इनफ फॉर द वाइज, अकलमंद के लिए इशारा ही काफी है। जो दुनिया का बुर्बक होगा उसके लिए पूरा दुनिया का भाषण देना भी कुछ नहीं है, लेकिन जो अकलमंद होगा पहला ही पॉइंट काफी है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन आवर लाइफ। पहला सेंटेंस कह रहा है द स्टोरी ऑफ इंग्लिश इज द स्टोरी ऑफ मॉडर्न मैन। गौर करोगे पहला सेंटेंस में लिखा हूं द स्टोरी ऑफ इंग्लिश इज द स्टोरी ऑफ मॉडर्न मैन। इंग्लिश का कहानी मतलब आधुनिक इंसान की कहानी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे ही बिहार बीटीबीसी कोर्स के चैप्टर नंबर 8 फ्यूचर ऑफ इंग्लिश में बिहार सरकार खुद लिखे हैं, हमारे शिक्षा विभाग खुद लिखे द स्टोरी ऑफ इंग्लिश इज द स्टोरी ऑफ मॉडर्न मैन। ये मेरा स्टेटमेंट है, मेरा स्टेटमेंट में आप बहुत क्या कहता है टीका टिप्पणी कर सकते हो या बहुत तरह का टेंडेंसी निकाल सकते हैं आप, लेकिन दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ बिहार सरकार। The story of English is the story of modern man। इंग्लिश का कहानी मतलब आधुनिक इंसान की कहानी। और समाज में एक से एक बुद्धिजीवी हैं जो हमारे बच्चे को मिसगाइड करते, अरे यार इंग्लिश क्या पढ़ते हो, एक महीना पढ़ लेना। उस बेचारे को पता ही नहीं है, बच्चे का कैरियर बर्बाद करते हैं। दूसरा नंबर, इन आवर कंट्री इंडिया वी आर ग्रेटली डिपेंडेंट ऑन इंग्लिश फॉर सोशल कमर्शियल पर्पस। कहता है कि इन आवर कंट्री इंडिया वी आर ग्रेटली डिपेंडेंट ऑन इंग्लिश फॉर ऑफिशियल सोशल एंड कमर्शियल पर्पस। हम अपने हिंदुस्तान में, अपने भारत में इंग्लिश के मैटर को लेके, चाहे वो ऑफिशियल मैटर हो, सोशल मैटर हो या कमर्शियल मैटर हो, पूरी तरह से इंग्लिश पर निर्भर है। वी आर ग्रेटली डिपेंडेंट ऑन इंग्लिश, हम लोग पूरी तरह से इंग्लिश पर निर्भर हैं। इन आवर एवरीडे एक्टिविटी वी यूज इंग्लिश वर्ड्स एंड टर्म्स। कहता है इन आवर एवरीडे एक्टिविटीज, हम हर दिन का क्रियाकलाप में वी यूज द इंग्लिश वर्ड्स एंड टर्म्स। चाहे कोई भी क्षेत्र में चाहिए, चाहे मेडिकल क्षेत्र में चाहिए, ऑफिस में चाहिए, कंप्यूटर में चाहिए, साइंस का पढ़ाई में चाहिए, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में चाहिए, ट्रेवल एंड टूरिज्म में चाहिए, सब सेक्टर में इंग्लिश वर्ड और टर्म का ही इस्तेमाल होता है। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस। साइंस का स्टूडेंट गौर करोगे, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस। मैं नहीं कह रहा हूं, बिहार सरकार कह रहा है इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस, क्योंकि मैंने अभी आपको जस्ट बताया पूरे स्टोरी ऑफ इंग्लिश किताब का मैं आपको समरी यहां दिया हूं कि इंग्लिश का क्या कहता है महत्व, स्टोरी ऑफ इंग्लिश में क्या बताया गया है। कम से कम 5-6 चैप्टर का मुख्य बातों को मैं दिया हूं। ये मेरा नहीं, बिहार सरकार का स्टोरी ऑफ इंग्लिश की सारी बातें हैं। तो इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस, ऑल द टर्म्स ऑफ साइंस कैरी इंग्लिश टू इंग्लिश। सो विदाउट इंग्लिश लैंग्वेज यू कैन नॉट टेक बेनिफिट, यू कैन नॉट एंजॉय द नॉलेज ऑफ साइंस। English is the language of learning all over the world. English is the language of learning all over the world. आज हम लोग पूरे दुनिया में इंग्लिश लैंग्वेज में ही पढ़ते हैं। हमारे हिंदुस्तान के हर राज्य के बच्चे कोटा में पढ़ने जाते हैं, लेकिन गौर करोगे वहाँ पढ़ाई का माध्यम इंग्लिश है। पूरे बिहार में साइंस का पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में होते हैं। और पूरे दुनिया में जितने अमीर तबके के लोग हैं, इंडिया में भी जितने अमीर तबके के लोग हैं, वे अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं। क्योंकि वो बुर्बक नहीं है, वो जानते हैं अच्छी तरह से कि बिना इंग्लिश का मेरा आने वाला पीढ़ी, मेरा यंग जनरेशन, मेरा अपना बाल बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकते हैं। इंग्लिश इज पावर हाउस ऑफ लिटरेरी एक्टिविटी। गौर करोगे, इंग्लिश इज ए पावर हाउस ऑफ लिटरेरी एक्टिविटी। ऑल टाइप्स ऑफ बुक्स इन द वर्ल्ड आर प्रिंटेड एंड आर पब्लिश्ड इन इंग्लिश मीडियम। आपको दुनिया में हर क्षेत्र का, चाहे साइंस का हो, चाहे एकेडमिक पढ़ाई का हो, रिलीजियस एक्टिविटीज का हो, हर एक्टिविटीज का बुक्स आपको वर्ल्ड में इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगा। आपको रामायण, महाभारत, गीता सब कुछ इंग्लिश मीडियम में मिलेगा। साइंस का हर किताब आपको सबसे पहले इंग्लिश मीडियम में मिलेगा। इसलिए कहता है इंग्लिश इज ए पावर हाउस ऑफ लिटरेरी एक्टिविटी। इंग्लिश क्या कहता है कि लिटरेरी एक्टिविटी, साहित्यिक गतिविधि का पावर हाउस है। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इन द होल वर्ल्ड द मॉडर्न टेक्नोलॉजी वी स्टडी इन इंग्लिश मीडियम। द टर्म ऑफ कंप्यूटर, द टर्म ऑफ मेडिकल लाइन, ऑल कैरी इंग्लिश टू इंग्लिश। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। गौर करोगे, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। ऑल द टर्म्स ऑफ कंप्यूटर कैरी इंग्लिश टू इंग्लिश। कंप्यूटर का कोई भी टर्म हिंदी मीडियम में नहीं होता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का कोई भी वर्ड हिंदी मीडियम में नहीं होता है। गौर करोगे आप लोग, विदाउट इंग्लिश लैंग्वेज वी कैन नॉट प्रोग्रेस इन एनी सेक्टर। विदाउट इंग्लिश लैंग्वेज वी कैन नॉट गेट ए जॉब इन मल्टीनेशनल मार्केट। सो इंग्लिश इज ए लैंग्वेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज ऑफ अर्निंग मनी। विदाउट इंग्लिश लैंग्वेज वी कैन नॉट अर्न मनी। So I politely request you, if you want to be a hero of this world stage, please learn English, write English, speak English. कहता है 9 नंबर पॉइंट में, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ मेडिकल लाइन।
In medical line, all the terms carry English to English. In medical line, all terms carry English to English. कहता है English is the language of medical line. 10 नंबर में कहता है English is the language of employment. सबसे खतरनाक पॉइंट, English is the language of employment. We cannot get job in any sector, we cannot get job in multinational market without knowing of English. बिना इंग्लिश रखे आप जो जितना मेडिकल क्या कहता है कि बड़का डिग्री और डिप्लोमा क्या कहता है लोगे, लेकिन आपको 2 सेंटेंस इंग्लिश बोलने नहीं आएगा तो यू कैन नॉट गेट एम्प्लॉयमेंट या जॉब इन मल्टीनेशनल मार्केट। बिना इंग्लिश के आने हुए आपको मल्टीनेशनल मार्केट में नौकरी मिलने वाला नहीं है, भले आप हजारों डिग्री और डिप्लोमा ले लें। यदि आप 2 सेंटेंस बोल के इंटरव्यू नहीं दे पाओगे, इंग्लिश थोड़ा बहुत लिखने पढ़ने आपको बोलने नहीं आता है तो आपको नौकरी नहीं मिलेगा। तो जिसको थोड़ा बहुत इंग्लिश लिखने पढ़ने बोलने आता है उसके लिए आज पूरी दुनिया ही खुला हुआ है। पहले लोग इंग्लिश को साम्राज्यवाद की भाषा मानते थे, लेकिन आज इंग्लिश को लोग पूरी दुनिया से जुड़ने का औजार मानते हैं। गौर करोगे, आज इंग्लिश पूरी दुनिया से जुड़ने का औजार है। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ अर्निंग मनी। इंग्लिश पैसा कमाने का विषय है। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ अर्निंग मनी। विदाउट इंग्लिश लैंग्वेज यू कैन नॉट अर्न द मनी। क्यों? व्हाई? बिकॉज विदाउट इंग्लिश लैंग्वेज यू कैन नॉट बी ए हीरो ऑफ दिस वर्ल्ड स्टेज। विदाउट इंग्लिश लैंग्वेज यू कैन नॉट शो योर टैलेंट इन द वर्ल्ड स्टेज। बिना इंग्लिश लैंग्वेज का आप वो टैलेंट अपना प्रतिभा को दिखा नहीं सकते हैं। किसी बुद्धिजीवी ने कहा था अगर दुनिया का मधुर भाषा बोलना है तो बांग्ला बोले, असरदार भाषा बोलना है तो उर्दू बोले, और कहीं का अगर हीरो बनना है तो 2 सेंटेंस इंग्लिश बोलिए। विदाउट इंग्लिश लैंग्वेज वी कैन नॉट बी ए हीरो ऑफ दिस वर्ल्ड स्टेज। गौर करोगे, विदाउट इंग्लिश लैंग्वेज वी कैन नॉट बी ए हीरो ऑफ दिस वर्ल्ड स्टेज। इस दुनिया के रंगमंच पर हम इंग्लिश लैंग्वेज के बिना हीरो नहीं बन सकते हैं। इन एनी प्लेस with any person under the any situation, if you speak English, all the persons attract me. अगर हम कहीं पे किसी के साथ किसी भी हालत में 2-4 सेंटेंस इंग्लिश बोलते हैं, all the persons attract to me, सभी लोग मेरे ओर आकर्षित होते हैं, and you will be hero of this place। और आप उस जगह का हीरो बन जाओगे कोई भी जगह में। in any place with any person under the any situation, if you speak English, यदि आप इंग्लिश बोलते हैं, you will be a hero of this place, आप उस जगह का हीरो बन जाओगे। Without English language we cannot show our talent on the world stage. इंग्लिश नॉलेज के बिना हम अपना क्या कहता है कि टैलेंट को, प्रतिभा को दुनिया के रंगमंच पर नहीं रख सकते। क्यों? Why? Because English is more effective language than any other language. क्योंकि इंग्लिश जो है दुनिया के अदर भाषा के तुलना में ज्यादा असरदार है। कहीं पे भी आप उर्दू, सुजापुरी, बांग्ला कोई भी लैंग्वेज बोलोगे वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा, लोग उतने आकर्षित नहीं होंगे। बट इफ यू स्पीक इंग्लिश, all the persons attract you, सारे लोग आपके तरफ देखेंगे। 2 सेंटेंस बोलने से ही धरती हिलने लगता है। सिर्फ 2 सेंटेंस बोलने से ही भूकंप आ जाता है बाबू, भूकंप आ जाता है। इसलिए 2 सेंटेंस इंग्लिश बोलना सीखिए, भूकंप आ जाएगा। और आप लोगों को पता है कि मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। कहता विदाउट इंग्लिश लैंग्वेज वी कैन नॉट शो आवर टैलेंट ऑन द वर्ल्ड स्टेज। इंग्लिश के बिना हम अपना प्रतिभा को दुनिया के रंगमंच पर नहीं दिखा सकते हैं। विदाउट इंग्लिश लैंग्वेज आवर लाइफ विल बी डार्क। विदाउट इंग्लिश लैंग्वेज आवर लाइफ विल बी डार्क। इंग्लिश लैंग्वेज के बिना ये हमारा जिंदगी अंधेरा हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा था इंग्लिश इज ए विंडो, इंग्लिश एक खिड़की है। Open the window of English and see the whole world. ये इंग्लिश रूपी खिड़की को खोलो और पूरा दुनिया को देखो। So without English language your life will be dark. Without English language you cannot progress in any sector. Without any English language you cannot earn money. Without English language we cannot get job in multinational market. So without English language our life will be dark. Why? English is a window. English एक खिड़की है। मैं नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहे थे Open the window of English. इंग्लिश रूपी खिड़की को खोलो and see the whole world, और पूरा दुनिया को देखो and disappear the darkness from your life, और अपने क्या कहता है जीवन से उस अंधेरा को गायब कर दो, दूर कर दो। Disappear माने गायब कर देना। English is a common language of the world. English is a common language of the world.
आप क्या कहता है इंडिया से बाहर जाओगे सब जगह इंग्लिश ही चलेगा, वहाँ हिंदी नहीं चलेगा। इसलिए इंग्लिश इज ए कॉमन लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। इंग्लिश इज द लैंग्वेज दैट बिलोंग्स टू द होल वर्ल्ड। इंग्लिश एक ऐसा भाषा है जिसका संबंध पूरे दुनिया से है। इंग्लिश इज ए विंडो टू द वर्ल्ड। ये मैं नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते कि इंग्लिश इज ए विंडो टू द वर्ल्ड। इंग्लिश तो पूरे दुनिया के लिए खिड़की है। ओपन द विंडो ऑफ इंग्लिश। इस इंग्लिश रूपी खिड़की को खोलो एंड सी द होल वर्ल्ड। और क्या कहता है, पूरा दुनिया को देखो। कहता है इंग्लिश इज ए विंडो ऑफ द वर्ल्ड। ओपन द विंडो ऑफ इंग्लिश। इस इंग्लिश रूपी क्या कहता है खिड़की को खोलो एंड सी द होल वर्ल्ड। और पूरे दुनिया को देखो, पूरी दुनिया का एंजॉय लो। इफ यू वांट टू टेक एंजॉय ऑफ द होल वर्ल्ड, आई पोलाइटली रिक्वेस्ट यू प्लीज रीड, राइट एंड स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश बोलना सीखिए, पढ़ना सीखिए, लिखना सीखिए। कहता है कि इंग्लिश इज द लैंग्वेज दैट बिलोंग्स टू द होल वर्ल्ड। इंग्लिश एक ऐसा भाषा है जिसका संबंध आज पूरे दुनिया से है। So the young generation of India, सबसे मेन और धमाका सेंटेंस। So the young generation of India should English as a challenging task। बहुत अच्छा से गौर करोगे। The young generation of India, भारत का जो युवा पीढ़ी है जो आज इंग्लिश को गर्दिश में भेज दिया है। क्या कहता है कि 12 क्लास का बच्चा अपना नाम भी नहीं लिख पाते हैं, एमएसआर नहीं क्या कहता है जानते हैं, तो बोलो आपको मल्टीनेशनल मार्केट में कैसे जॉब मिलेगा। विदाउट इंग्लिश का तो आपको, विदाउट इंग्लिश यू कैन नॉट प्रोग्रेस इन एनी सेक्टर। आपको तो सिर्फ एक ही पहला लाइन ही काफी है जगाने के लिए। द स्टोरी ऑफ इंग्लिश इज द स्टोरी ऑफ मॉडर्न मैन। कैसे आप क्या कहता है डॉक्टर और इंजीनियर बनोगे, कैसे कंप्यूटर का क्या कहता है कि कंप्यूटर क्या कहता है इंजीनियरिंग कोर्स करोगे, कोई भी बड़े बड़े डिग्री और डिप्लोमा आप कैसे लेंगे, कैसे 2 सेंटेंस इंग्लिश आप नहीं बोलेंगे तो मल्टीनेशनल मार्केट में आप कैसे क्या कहता है नौकरी लेंगे। 2 सेंटेंस इंग्लिश बोलना नहीं आप सीखोगे तो आप क्या कहते हैं दुनिया का हीरो कैसे बनोगे। इसलिए मैं यंग जनरेशन ऑफ इंडिया से कहना चाहता हूं, जो मेरे यंग जनरेशन है, आप मेरे दुश्मन नहीं, आप तो मेरे छोटे भाई हैं, आप तो मेरे दोस्त हैं। मैं तो आपका कैरियर और फ्यूचर के लिए ही ये क्या कहता है यूट्यूब चैनल खोला हूं। क्या कहता है आपसे मेरा पोलाइटली रिक्वेस्ट, आप गौर कीजिएगा, ये बात मैं नहीं कर रहा हूं। मॉडर्न इंग्लिश चैप्टर में बिहार सरकार का क्या कहता है कि बिहार सरकार खुद लिखे हैं, मैं नहीं बताया हूं, मैं नहीं लिखा हूं। ये सारी बातें जो मैंने अब तक कहा, अपना इतना बड़ा शानदार और खतरनाक और धांसू क्या कहता है स्टेट भाषण दिया, ये सारी बातें स्टूडियो ऑफ इंग्लिश का है, हमारे सिलेबस का है, बिहार सरकार का सिलेबस का है, क्लास 12 और 11 का। उसी में क्या कहता है मॉडर्न इंग्लिश चैप्टर में लिखा है कि द यंग जनरेशन ऑफ इंडिया शुड टेक इंग्लिश एज ए चैलेंजिंग टास्क। गौर करोगे, द यंग जनरेशन ऑफ इंडिया शुड टेक इंग्लिश एज ए चैलेंजिंग टास्क। कहता है द यंग जनरेशन ऑफ इंडिया शुड टेक इंग्लिश एज ए चैलेंजिंग टास्क। व्हाई? बिकॉज दे कैन नॉट प्रोग्रेस इन एनी सेक्टर। क्योंकि हमारा यंग जनरेशन कोई भी सेक्टर में तरक्की नहीं कर सकता है विदाउट इंग्लिश लैंग्वेज। इसलिए यदि आप हर सेक्टर में क्या कहता है तरक्की करना चाहते हैं तो इंग्लिश को मजबूत कीजिए। विदाउट इंग्लिश लैंग्वेज आवर यंग जनरेशन कैन नॉट प्रोग्रेस इन एनी सेक्टर। थैंक यू माय फ्रेंड्स, माय स्टूडेंट्स।